নমস্কাৰ জীৱন উদযাপনৰ আজিৰ এই খণ্ডটোলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এবিধ বিশেষ বাদ্যযন্ত্ৰৰ মূৰ্ছনা আমি শুনিম অসমৰ টেলিভিছনৰ ষ্টুডিঅ'ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে। দেশৰ এগৰাকী বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত দেৱাশিষ ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সৈতে আছে। তেখেতক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ। দেৱাশিষ ভট্টাচাৰ্যই দেশে বিদেশে সুৰৰ মূৰ্ছনা তুলিছে। তেওঁ নিজাকৈ 4টাকৈ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট 4বিধ বাদ্য তেওঁৰ স্ৰষ্টা। তাৰে এবিধ বাদ্য পুষ্পবীণা। এই পুষ্পবীণাৰ লহৰ উঠিব, তাৰ সুৰৰ মূৰ্ছনা আমি সকলোৱে শুনিম। দুবাৰকৈ তেখেতে গ্ৰেমিৰ বাবে নমিনেশ্যন পাইছে আৰু সকলোৰে মাজত তেওঁ জনপ্ৰিয় তেওঁৰ এই শ্লাইড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ বাবে আৰু তাৰ চৰ্চা, তাৰ যি সৃষ্টি সেয়া সকলোৰে মাজত তেওঁ বিলাই দিছে। অসমৰ লোকসংগীতৰো তেখেতে চৰ্চা কৰিছে। সেই সকলোবিলাকৰ মাজলৈ যাম। আমি এটা বিশাল টীম আমাৰ সৈতে আছে। আমি চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিম তেখেতৰ পুত্ৰ সূৰ্যদীপ্ত ভট্টাচাৰ্য, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ সকলোৰে চিনাকি মুখ দিব্যজ্যোতি চাংমাই, দিব্যদা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰীতি বৰা আমাৰ সৈতে আছে, তেখেতক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু দেৱাশিষ ভট্টাচাৰ্যৰ বন্ধু আমাৰ সকলোৰে চিনাকি মুখ কমল কটকী, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ সৈতে লগতে আছে পংকজ বৰা। পংকজ বৰাক সকলোৱে চিনি পায়, ঢোল বাদ্যৰ বাবে তেওঁ অসমৰ চিনাকি হৈ পৰিছে দেশে বিদেশে, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে আছে সোণ আলী ৰেহান, আমি আপোনাকো স্বাগতম জনালোঁ। পণ্ডিতজী, আমি অসমীয়া, বাংলা, হিন্দী কেইবাটাও ভাষাৰ মাজত আমি আপোনাৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিম। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে সংগীতৰ ভাষাৰে, সংগীতৰ আচলতে কোনো ভাষা নাই, কোনো জাতি নাই, কোনো ধৰ্ম নাই। সংগীতে যিটো ভাষাৰে কথা ক'ব সেই ভাষাৰে আমি আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিম। প্ৰথমে আপোনাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ বিষয়ে আমি অকণমান জানি ল'ব বিচাৰিম, যিটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এই মুহূৰ্তত আপুনি হাতত লৈ আছে। मेरा छोटा सा ज़िंदगी में मैंने इतने बड़े बड़े दिग्गज गुरुओं से जो भी तालीम हासिल किया, जो भी सुर और ताल मुझे ये ज़िंदगी बिताने के लिए इंस्पायर किया है, उससे जो गूंज मेरे मन में हमेशा बनी रही, वो गूंज से मैंने 4 इंस्ट्रूमेंट बनाया। ये पुष्पबीणा है, एक अनोखा सपने में दिखा ये आवाज़। जब मेरे गुरु पंडित ब्रिजभूषण काबरा, जिनसे मैंने गिटार की तालीम उनके घर रह के अहमदाबाद में रह के लिया, वो जब चल बसे तो मेरा एक ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे एक नया ऐसा कुछ साज बनाना चाहिए जो मेरे दिल का जो दर्द है और उनका दिया हुआ जो प्यार है वो दिखता है। इसलिए दुनिया में सबसे पहला स्लाइड गिटार जिसके ऊपर तबली पे चमड़ी लगा हुआ है, चमड़ा स्किन लगा हुआ है, बाकी तो वुडन होता है। बाकी वुडन, सब तो वुडन होता है। तो वो चमड़ा मैं लगा के उसका आवाज़ निकाला। 1-1.5 साल तक उसका रिसर्च चला, काफ़ी तोड़ मोड़ करके फिर नया आवाज़ निकाला। तो ये है पुष्पबीणा और इसको मैंने पेटेंट भी किया है। मगर सबसे बड़ी बात है इसमें 6 कॉन्टिनेंट के जो पुराने जो आवाज़ है साज की, जैसे बैंजो है, रबाब है, साज है, ईरानियन साज, फिर ऊद है, फिर हमारा इधर का एसराज, सरोद, इस सब का जो आवाज़ है, उधर साउथ ईस्ट एशिया का, जापान का साज है शामीशन, और चाइना और वहाँ का साउथ कोरिया का है गायगम या जंग। वो सब आवाज़ इसमें ब्लेंडेड है। ओके। तो मगर मैं इंडियन क्लासिकल आर्ट कलाकार हूँ, छात्र हूँ, इसके कारण मैं इसमें इंडियन म्यूज़िक बजाने का जो प्रयास किया, उसी को असम में पहली बार लेके आया हूँ साज, और आपने बुला लिया तो बहुत मज़ा आ रहा है। ঠিক আছে। और আপুনি নিশ্চয় এইটো কথা জানেই যে আমি অলপ দিন পূৰ্বে অসমৰ এগৰাকী সংগীতৰ, আচলতে অসমৰ নহয় সংগীতৰ এগৰাকী নক্ষত্ৰ জুবিন গাৰ্গক আমি, मेरा छोटा भाई ऐसा था, और उसका जो गाना उसका नाम सुनने से पहले उसका गाना, उसका लोक संगीत, उसका धुन मैंने सुना तो मुझे हमेशा वो दिल में पूरा टच करता था। कलाकार बनना और एक नेशनल मतलब लीडर बनना संगीत के जरिए, कला के जरिए,
वो उतना आसान नहीं है, वो सब कोई नहीं बन पाते। तो उसमें ये हुनर था जुबिन में, जुबिन भाई में ये हुनर था। तो आज मैं थोड़ा सा उनको याद करके एक धुन गुण जिसमें, हाँ, थोड़ा सा पुष्प बीना में बजा के थोड़ा सा समर्पण कर रहा हूँ। ये भाई लोग हैं साथ में। हाँ, तो আমি আৰু এটা চিনাকি পণ্ডিতজীৰ দি ল'ব বিচাৰিছোঁ। পণ্ডিত দেৱাশিষ ভট্টাচাৰ্য সংগীতৰ মাজেৰেও তেওঁৰ চিনাকি আছে, লগতে আৰু এটা চিনাকি হৈছে যে তেওঁ অসমৰ জোৱাই, আৰু সেই পৰিচয় খুব ভালকৈ তেখেতৰ বন্ধু কমল কটকী দাদাই আমাক দিব পাৰিব। পণ্ডিত দেৱাশিষ ভট্টাচাৰ্য তেওঁ আমাৰ ৰহা চকীৰ এটা ৰয়েল ফেমিলি। তেওঁৰ হ'ল প্ৰয়াত ধীৰেণ বৰুৱা আৰু লীলাৱতী বৰুৱাৰ কনিষ্ঠ কন্যা তৃপ্তি বৰুৱাক বিয়া কৰাইছে আমাৰ ৰহাৰ ছোৱালী। তেওঁলোক একেবাৰে আহোম ফেমিলি, ৰহা চকীৰ যিখিনি আহোম সম্প্ৰদায়ৰ আছে ৰয়েল ফেমিলি, তেওঁলোকৰ উপৰি পুৰুষ আমাৰ একেবাৰে চুকাফাৰ পৰা আহিছে। এনেকৈ পণ্ডিতজী আৰু এটা কথা আপোনাক সুধি ল'ব বিচাৰিম, আপুনি অসমীয়া খুব সুন্দৰকৈ বুজি পায় বা ক'বও পাৰে অলপকৈ, যে গুৰু শিষ্য যিটো পৰম্পৰা, গুৰুৰ পৰা কিদৰে শিকা যায়? কাৰণ গুৰুৱে আপোনাক শিকালে অকল যে আপুনি নটেশ্যনেই শিকি গ'ল সেয়াটো নহয়, গুৰুক কিদৰে ধাৰণ কৰিলে, গুৰুৰ আদৰ্শ কিদৰে ল'ব লাগে, কেনেকৈ সেইটো সম্ভৱ হয়, কি কৰে সম্ভৱ? মানে गुरु ऐसा है जो एक बच्चा को जिंदगी देता है। गुरु के साथ रह के उनका छोड़ा हुआ सांस वापस लेके शिष्य सीखता है। तो गुरु के पास रहना बहुत ज़रूरी है। रोज गुरु के जो चिंतन में परिवर्तन आता है, शोध आता है, वो अगर कोई गुरु के साथ रह के कम से कम 10-20 साल सीखे तो उसका गुरु का जो शिक्षा का जो छवि है, जो फोटो है, वो बच्चे में आने लगता है। नहीं तो कोई टेक्निक सीख लेता है, कोई 2-4 बंदिश सीख लेता है, फिर गुरु का नाम करता है, वो सब फूंग फांग, वो चलता नहीं है, वो टिकता नहीं है। जो टिकता है वो गुरु के पास रह के, क्योंकि गुरु का मन में जिस चीज़ से आनंद होता है उसका रिफ्लेक्शन आता है म्यूज़िक में, संगीत में, और उनका दुख का एक्सप्रेशन भी संगीत में है। तो दुख सुख का जो एक्सप्रेशन है वो गुरु के पास रह के
उनको देख के, उनको सुन के सीखना पड़ता है। नोटेशन से थोड़ा सा सीखना हो जाता है, जैसे एकेडमिक कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ के जो शिक्षा मिलता है, हाँ। वो नोटेशन से हो जाता है, उससे काम चला जाता है। मगर संगीतकार बनना आसान नहीं है, उसके लिए जिंदगी छोड़ देना पड़ता है संगीत के लिए, और कुछ नहीं। और अभी आपने बोला था कि एक छात्र हूँ अभी भी, मैं इतना तो एक पूरा लंबा छात्र ही एक हूँ। परिक्रमा, एक रास्ता तय करने के बाद आप बोल रहे हैं कि अभी भी छात्र हूँ। हाँ, मैं रोज सीखता हूँ, हाँ, रोज बैठता हूँ। मैं बच्चों से भी सीखता हूँ, जिसको मैं सिखाता हूँ उनका हुनर देख के भी कोई चीज़, मुझे पुराना चीज़ याद आ जाता है। तो मैं सीखता ही रहता हूँ हमेशा, और वो जो सीखता है तो उसको उससे कंपोजिशन नया मिलता है, नया नया आइडिया मिलता है। अभी ये सीखा तभी ना ये पुष्पवीणा बना, नहीं तो वो 6 तार वाला हवाइन गिटार बचपन में जो गोद में लिया था उससे जिंदगी चलता, तो सीखा तभी ना ये हुआ। सीखना पड़ता है। और एक बात बोलिए कि जानना चाहता हूँ कि ये जो शास्त्रीय संगीत या जो कोई भी शिक्षा होता है उसमें शॉर्टकट नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, ये लाइफ है। व्हाट यू प्ले इज योर लाइफ। जीवन है ना, जीवन उद्यापन जो है ना, वो संगीत ही जीवन उद्यापन है। एक हाँ, और संगीत से ना एक पैरेलल ब्रेन फ्रेम बनता है। उससे आदमी का ना कर्म जीवन में जो भी कुछ खरोश आता है, कोई भी कुछ मतलब दुख आता है या तो कुछ रिफ्रैक्शंस हो जाता है, उससे बचाता है वो संगीत का जो पैरेलल ब्रेन। जैसे हमारा दांत में एनामल रहता है ना, एनामल जैसे दांत के अंदर कोई क्षय नहीं होने देता है। तो संगीत शिक्षा जिंदगी में धारण करने से इंसान एकदम अभिकृत रह जाता है, उसको कोई दुख सुख से कुछ परवाह नहीं होता है। तो संगीत सबसे बड़ा मतलब इट्स नॉट 6, इट्स 7th डायमेंशन फॉर इंसान के लिए। क्या बात, क्या बात। আৰু অকণমান যিহেতু আপুনি শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ ইমান দীঘলীয়া এটা পৰিক্ৰমা, শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ এটা জড়িত হৈ আছে, আপুনি কৈছে যে ব্ৰিজভূষণ কাব্ৰাৰ পৰা আপুনি শিকা আৰম্ভ কৰিলে, তাৰপিছত আপোনাৰ জাৰ্ণি এতিয়াও চলি আছে আৰু চলিয়েই থাকিব। অকণমান যদি শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ আমি শুনো, আপোনাৰ পৰা শুনো, অলপ সুৰ শুনো। पुष्पवीणा में राग खमाज मेरा ये कॉम्पोजिशन है, सुनिए। ये तराना है। देर देर ना देर देर ना देर देर ना ताना देर तानुम ता दे रे ना देर दानी तुम देर देर दानी। ये मुखड़ा है, इसको हम बजा के सुनाते हैं।
क्या बात है। पंडित जी, एक और बात बताइए, बजाने के लिए सुनना कितना ज़रूरी होता है? सबसे ज़्यादा तो सुनना ही जरूरी होता है। हाँ। सबसे ज़्यादा हमको हमारे परिवार के जो पुराने दादाजी, नाना जी, पिताजी, माताजी, फिर गुरुजी ने बताया, सुनो इतना, बजाओ, सीखो इतना, बजाओ इतना। इसका मतलब जितना सुनो उससे परीक्षा निरीक्षा करो, सीखो जो तुमने परीक्षा निरीक्षा किया वो सही है या नहीं, फिर उसके बाद साधने के बाद जब बजाओगे तो वो खीर बजाना चाहिए, ताकि कोई गलती ना दिखाई दे उसमें, नीट आना चाहिए पूरा। सीखो इतना, बजाओ इतना, उसमें नीट आना चाहिए। हाँ, तो गुरु हम बहुत भर भर के देते हैं सीखने के लिए। हाँ। वो कौन सा तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा मन में कितना समझ में आता है, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बजाना कम होना चाहिए, सीखना ज़्यादा होना चाहिए, सुनना बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। पंडित जी, असम के जो फोक धुन है, लोक धुन है, उसको लेकर सॉन्ग ऑफ लाइफ, अपने बिहू का धुन बहुत साल पहले इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, श्रोताओं के लिए आपने प्रस्तुत किया 2002 एल्बम नेम इज महिमा। था। महिमा। It was a collaboration between Bob Brosman and myself. Was in Amazon top 10 for whole year. But people, there were a lot of great songs, but people really loved the Song of Life. मतलब बिहू। Bihu. तो फिर और कुछ ऐसा असम के धुन अगर आप सुनाए, और ये जो इंस्ट्रूमेंट आपने हाथ में लिया हुआ है, आनंदी। आनंदी। हाँ, आनंदी का खासियत क्या है? आनंदी का खासियत, आनंदी मेरी बेटी का नाम है, उसको मैंने डेडिकेट किया ये। और आनंदी का खासियत है ये, दिस इज स्लाइड यूकेलेले मैंडोला combination with a slide guitar with a hollow neck. This is my creation. I just made it in 2000. Yeah, 2000. It's only 4 strings. It's tuned in G. G relative tuning can be done, but it's basically it's a folksy tune. Bhajan, kirtan, bagara you also can play. So, but I have also adapted some flamenco style also. Just for a second. थोड़ा सुनाइए। Yeah, Anandi. आनंदी। This is flamenco. But from flamenco to Assam is फोक। folk melody. तो चले सब मिलके कुछ बनाते हैं। ठीक है, चलो।
এই যিটো গীত আমি শুনিলোঁ কৰ্ণাটক কুণ্ডল रामेश्वर पाठक असम का बहुत बड़ा दिग्गज क्या कलाकार खजाना था। है यहाँ क्या गीत गाया था, क्या साहित्य, क्या संगीत का रचना हुआ है इस धरती पे। हाँ हाँ लोग को सुनना चाहिए बहुत ज़्यादा। पंडित जी, असम में इतना सुर फैला हुआ है, ट्यून्स फैला हुआ है कि वो एक्सप्लोर करते करते ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन वो सुर एक्सप्लोर करना नामुमकिन है। आपने बहुत सारे सुर सुना है, बिहू को लेके गए हैं आप अलग ही मुकाम पे। कुछ बताइए, और कुछ बिहू का ट्यून भी आपके इंस्ट्रूमेंट में हम लोग सुनना चाहेंगे। मुझे फोक म्यूज़िक ऑफ इंडिया, खासकर आसाम, फोक म्यूज़िक ऑफ इंडिया क्या होता है मेरे मन में ऐसा लगता है, ये जो भी भरा हुआ है पूरे दिमाग और शरीर में, वो ये सुनने के बाद, ये बजाने के बाद, ये सोचने के बाद वो खाली हो जाता है। एकदम मस्ती की पूरा भावना आ जाती है। वो मस्त होने के लिए हमको स्विट्ज़रलैंड नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ा सा असम आना पड़ेगा और बिहू के साथ रहना पड़ेगा। क्या बात। तो ये यहाँ पे एक मास्टर परकशन प्लेयर, ढोल प्लेयर पंकज भाई है। थोड़ा सा पंकज भाई से आधा मिनट कुछ रोल्स सुनना चाहता हूँ, प्योर ट्रेडिशनल असमीज़ ढोल का।
ধন্যবাদ আচলতে দেশৰ এগৰাকী বিখ্যাত শাস্ত্ৰীয় সংগীতজ্ঞৰ বাদ্যযন্ত্ৰত অসমৰ লোকসংগীতৰ সুৰ শুনাটো আমাৰ কাৰণে এটা বিৰল অভিজ্ঞতা পণ্ডিত দেৱাশিষ ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা আমি তেওঁৰ সুৰ শুনি আছোঁ তেওঁৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ যি দীঘলীয়া অভিজ্ঞতা সেয়া আমাক বৰ্ণনা কৰি আছে লগতে তেওঁৰ সৃষ্টি কৰা চাৰিটাকৈ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ কথা আমাক কৈছে দুটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আমাৰ সন্মুখত ইতিমধ্যে বজাইছে অসমৰ লোকসংগীতৰ তেওঁ সুৰ বজাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ পৰা আৰু কেইটামান কথা জানিব বিচাৰিম পণ্ডিতজী সংগীত के साथ जब शरीर तन मन जब जोड़ जाता है तो क्या होता है तब असली जिंदगी बनती है बिना संगीत सुबह शाम वो एक नाकाम जिंदगी है संगीत का जो साधक है जो ऑफिस से निकल के रात को 1:30 बजे नहा धो के 1 घंटा रियाज करके सोता है उसको पता चलता है जो संगीत उसके लिए क्या मूल्यवान चीज होती है वो 1 घंटा रियाज सारा दिन का थकान निकाल देता है उसके लिए दवाई नहीं लेना पड़ता है संगीत ही दवाई है हाँ संगीत ही दवाई वो जो सुर का जो लॉन्ग नोट है ना सा पा सा वो उत्थान होता है उसका राइज होता है पॉजिटिव डोपामिन का टैबलेट नहीं लेना पड़ेगा ये डोपामिन का सप्लाई है इसको जो बिलीव करता है उसका तंत्र जो है शरीर है वो अलग से बन जाता है क्या बात है আমি অনুষ্ঠানৰ প্ৰায় সামৰণিলৈকে আহিছোঁ আমি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আপোনাৰ সংগীতৰ সৈতেও জড়িত হৈ আছে সকলোৰে সংগীতৰ সৈতে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নাম সদায় আহে অনুষ্ঠানৰ সামৰণি আমি যদি ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতেৰে কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু ভাল লাগিব আমাৰ কিবা যদি ধুন আপুনি ভূপেন দাৰ শতবর্ষ জন্মদিন চলছে হ্যাঁ তাকে আমার সশ্রদ্ধ বিনম্র প্রণাম আমরা যখন পৃথিবীর কিছুই জানি না হাফ প্যান্ট পরি ধান খেতে ঘুরে বেড়াই তখন থেকে ভূপেনদার গান মাইকে শুনে আসলে মন কোথায় চলে যেত আমাদের জিন্দেগির সঙ্গে জীবনের সঙ্গে ভূপেনদার গানের একটা বিরাট মানে একটা জায়গা যেটা ওনার একটা গায়কী ওনার একটা ডিভোশনাল আওয়াজ ছিল আর আওয়াজটা শুনলেই যেমন জুবিন ভাইয়েরও ছিল ভূপেনদারও তাই ছিল ওই যে একটা মাটির টান ওনার সুরের মধ্যে এই যে ব্রহ্মপুত্রের জলের যে আওয়াজ সেটাও যেন শোনা যেত একদম তো সেইটা যাই হোক আজকে একটা সুযোগ পেয়েছি ওনারই একটা গাওয়া বড়গীত বৰগীত এই মাধবদেব মহাপুরুষ মাধবদেবের লেখা তেজরে কমলপতি খুব শুনি আমরা বাড়িতে আমার স্ত্রী আমি শুনি তো একটুখানি বাজাচ্ছি তারপর ওটার সঙ্গেই ভূপেন্দার একটা গান যেটা আমরা ছোট থেকে শুনে এসেছি সেটা একটু বাজাবো এই পুষ্পবীণায় ঠিক খুব ভালো
পণ্ডিত দেবাশিস ভট্টাচার্যজি, আপনি এলেন সুরে সুরে আমার এই অনুষ্ঠান একদম ভরিয়ে দিলেন। আমি আপনাকে কি বলতে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো। আমি আমাদের একটা বিরাট প্রাপ্তি বলে আমি মনে করছি। আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আৰু আমাৰ সৈতে যিসকল শিল্পী, কলাকুশলী, কমল দা আপোনালোক আটাই উপস্থিত থাকিলে আপোনালোক আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থ্যাংক ইউ, নমস্কার, সবাই ভালো থাকুন।